अस्सलाम वालेकुम listeners and viewers, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। PSL की सीरीज़ में हम लोग आपके लिए लाए हैं एक नई एपिसोड जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे मुल्तान सुल्तान्स की स्क्वाड एनालिसिस, स्क्वाड फॉर्मेशन, उनकी ड्राफ्ट पिक्स, न्यू प्लेयर्स। हम लोग साथ साथ रिकैप करेंगे कि उनके साथ PSL8 में क्या हुआ। They've had a pretty consistent performance so far. But before we get into that, I would like to request all of our viewers to please like and subscribe to our channel. Keep sharing our content. Please continue to give us your feedback. आपके फीडबैक से हम लोग को आइडिया होता है कि हम आप लोग को कैसा अपना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। To start off with Multan Sultans, Multan Sultans का एक काफ़ी consistent PSL बैच रहा है अब तक का, starting from 2020. They have been in the finals for the last 3 finals. 2021 में वो लोग जीते भी थे, but unfortunately they've lost to Lahore in 2022 and in 2023. But 2023 का जो फाइनल था वो बहुत आखिर लेवल का था, मतलब last ball thriller. I was personally hoping for a super over, but it was a very thrilling final nonetheless. They've had a pretty stable unit leading up to PSL8. Stable core, Shan, Masood, David Miller, Mohammad Rizwan, Kyron Pollard. We've also seen brilliant bowling performances by their bowlers, Dani, Ihsanullah, and all them. So we want to start off by first, let's recap PSL8. Or how would you rate Multan Sultan's PSL8 performance? Unki, they've had a pretty stellar year last year, virtually unbeaten. One or two losses, I believe, and that was due to experimentation within the team combination. तो आप क्या कहते हैं जो उनका जो टीम डायनामिक था PSL8 में जो PSL9 में नहीं है, जिसको हम डिस्कस करेंगे? How would you recap PSL8 performance for Multan Sultans? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कैंपेन थी। मुझे जो लगा कि फाइनल में दे कुड हैव डन बेटर। उसके अलावा जो ग्रुप गेम्स थे, एज यूजुअल वो लोग ग्रुप गेम्स में डोमिनेट करते हैं, क्वालिफायर जीतते हैं, बट देन फाइनल में इन द लास्ट 2 सीजन जो हमने देखा है वो यही कि दे आर जस्ट नॉट एबल टू पुल इट ऑफ। तो ये एक इशू आ रहा है, एंड आई थिंक ये थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा इस साल भी कि ग्रुप गेम्स के अंदर दे वर एबल टू डोमिनेट, बट प्ले ऑफ में आके पर्टिकुलरली फाइनल में दे आर नॉट जस्ट गेटिंग देयर थिंग्स राइट। जहाँ तक बात रही उनके कॉम्बिनेशन की, तो ऑब्वियसली दे हैव चेंज क्वाइट अ बिट। मैनेजमेंट चेंज हुई है, कोर चेंज हो गया है पूरा, नए प्लेयर्स आए हैं टीम के अंदर, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू गेट सेटल्ड। और वो देखना होगा कि उससे टीम की परफॉर्मेंस कितनी अफेक्ट करती है। ऑन पेपर दे हैव प्रीटी गुड टीम, मगर वही वाली बात है कि पहला सीजन होगा बहुत सारे प्लेयर्स का। इवन रिजवान will find it hard to put up a winning combination. तो let's hope कि वो किस तरह से perform करते हैं, but overall I think they are in a very good spot. Okay, I believe जैसे आपने बात की, they've had a pretty decent year last year. Uh, अभी हम लोग इस पे बात करेंगे, but how the final that we saw and how Khushdil Shah almost pulled it off for Multan. Um, I'm glad that they've retained Khushdil Shah. They've gotten Iftikhar Ahmed. They've let go of Riley Russo. Sort of tells us what kind of combination they're going to go for. It seems to me that they're going to play Iftikhar at 4, which was a position occupied by Riley Russo. So it seems like they are going to give Iftikhar a bit more time in the middle. तो इसी के साथ साथ अब हम लोग आते हैं ट्रेड्स पे। हमने देखा था कि ये जो PSL का सीजन था, it was a blockbuster of trades. We've seen Naseem Shah leave Quetta and gone to Islamabad. We've seen Shan Masood leave Multan and go to Karachi. We've seen Riley Russo leave Multan and he has gone to Quetta, his original franchise. We've seen Iftikhar made a switch to yet another franchise, to Multan Sultans from Quetta Gladiators. So let's start with Iftikhar.
platinum level trade. Obviously, the talent's there. Obviously, the potential is there for Iftikhar. Leading up to this season, he hasn't had a very strong performances leading up to this season. He's played 2 seasons for Quetta, very underwhelming. I think overall his PSL career has been underwhelming. But how do you rate this move for Multan and for Iftikhar? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक इफ्तिखार वांटेड टू लीव क्वेटा और उसको मुल्तान में जाना था जस्ट बिकॉज के आई थिंक रिजवान कैप्टन है, अब्दुल रहमान कोच हैं, तो वो एक पेशावर वाला कनेक्शन है, तो ही विल गेट मोर कंफर्टेबल विद दैट। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से ट्रेड हुई है एंड देन क्वेटा जस्ट उन्होंने बेसिकली रायली को लेके दे जस्ट डिड द फैंटास्टिक जॉब। जहाँ तक बात इफ्तिखार की रही है तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड के उसके साथ कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे फ़हीम अशरफ है, आज़म खान है, ये पीएसएल लेवल पे चीते प्लेयर लगते हैं बिल्कुल के। आप राना साहब को देखें तो वो बॉलिंग भी करा रहे होते हैं, बैटिंग भी कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद को मैचेस भी जितवा रहे होते हैं, 140 क्लिक कर रहे होते हैं। 140 क्लिक कर रहे होते हैं, नया बॉल भी करा रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं। बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न इफ्तिखार जो है वो पीएसएल में ही इज़ जस्ट नॉट एबल टू परफॉर्म एट ऑल। उसने लाहौर के अलावा हर फ्रेंचाइज से खेल लिया है एंड आई थिंक PSL 4 में शायद कराची के लिए उसने 1-2 इनिंग्स खेली होंगी, जहाँ पे आके उसने मैच फिनिश किया है। आई थिंक इस्लामाबाद के लिए उसने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है। उसके अलावा कोयटा के लिए तो उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से शायद 2 सीज़न में मेरे ख्याल से उसकी 250 होंगी, और जब भी वो आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा होता है कि ही इज़ जस्ट नॉट देयर विद द टीम, उसको मज़ा नहीं आ रहा वहाँ खेलने में, या आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसका क्या मसला है। बट द पॉइंट इज़ कि वो बहुत ही अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंसेस उसकी रही हैं PSL में अप टू दिस PSL 9। तो लेट्स सी के पेशावर कनेक्शन जो है वो उससे परफॉर्मेंस निकलवा पाता है कि नहीं। क्योंकि मेरे लिहाज से जितना ही बैशिंग हमने आसिफ अली की और खुशदिल शाह की देखी है, उस लिहाज से देखा जाए तो इफ्तिमेनिया अभी भी वो 6 छक्कों पे चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर उन्होंने इस सीज़न भी परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से उनकी से एक्सपेक्टेशन है, देयर इज़ अ चांस जहाँ पे वो शायद वर्ल्ड कप से भी गोल हो जाए। तो और फिर उस कैलिबर का प्लेयर जो डोमेस्टिक के अंदर जो है वो ब्रैडमैन बना हुआ होता है, हर दूसरे मैच में वो परफॉर्म कर रहा होता है। अभी आपने देखा होगा वो सस्ती सी एक लीग हुई है, सिंध प्रीमियर लीग, उसके अंदर भी वो रन कर रहे थे, वो विकेटें भी ले रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। मगर वो PSL लेवल पे आके उनको आई डोंट नो पता नहीं क्या हो जाता है, यानी कि वो उनका ये लेवल हो जाता है कि वो सरफराज से भी 6 छक्के खा रहे, 4 छक्के खा रहे होते हैं। तो लेट्स सी कि वो इस साल वो क्या करते हैं, एंड आई रियली होप के क्योंकि मुल्तान रियली नीड्स हिम 4 नंबर पे, जैसे आपने कहा कि वो खेलें। आई डाउट कि वो 4 पे खेलेगा, बट probably he will play at number 5 or number 6, मगर जहाँ पे भी वो खेले he will be their match winner. He will have to perform like that. क्योंकि इस बार ना मिलर है, ना पोलार्ड है, ना टिम डेविड, तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है इफ्तिखार पे और खुशदिल पे। तो लेट्स सी। नहीं, बिल्कुल। आपने वो 4 छक्कों की बात की, वो वाला आई थिंक वो वाला वाहिद सीज़न था जिसमें आई थिंक कोयटा का एक ही बैट्समैन चला था, वो सरफराज था, एंड दैट वाज इट। But speaking of performances, I really hope कि इफ्तिखार चले, क्योंकि there was a really big shoes of Riley Russo that he has to fill. So let's move on to their second. Actually, this was their first round platinum pick, which was David Willey. David Willey played in PSL 7. PSL 8 में Sheldon Cottrell थे in place of David Willey. David Willey had a really good PSL 7. Obviously, जीते थे वो, नहीं जीते नहीं थे, they did not win the finals, but he has had a pretty decent tournament. Any word on him? I think वो fully available है. He's recently retired from England cricket, so he should be available for a full season, considering कि मुल्तान की bowling में थोड़ा dent लगा है in the recent news that we've heard. Ihsanullah, he's probably partially available at best. Um,
एक और दो प्लेयर की अनअवेलेबिलिटी का इशू हुआ है। आई थिंक रीस टॉपली इज इंजर्ड नाउ, तो डेविड विली का रोल थोड़ा और इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है, स्पेशली विद द न्यू बॉल एंड एट डेथ। तो हाउ डू यू रेट दिस पिक फॉर मुल्तान, एंड what do you expect from David Willey to fulfill for Multan? आई थिंक डेविड विली का वही वाला है कि ही विल बी द लीडर फॉर दैट पेस अटैक, और PSL7 का उसके पास एक्सपीरियंस है, तो ही नोज़ कि किस तरह की कंडीशंस हैं पाकिस्तान में। और द गुड थिंग अबाउट विली इज़ कि उसका बॉल स्विंग होता है, तो ही विल बी एबल टू गेट सम परचेस इन पाकिस्तानी कंडीशंस, जहाँ पे स्पेशली जहाँ पे नाइट गेम थोड़ा सा बॉल उसका स्विंग हो सकता है, तो बी अ विकेट टेकर बॉलर। I think पिंडी में नाइट गेम से बॉल थोड़ा स्विंग होता है, बट कराची में तो सीधा बल्ले पे ही आएगा बॉल। आई डोंट थिंक इतना स्विंग होगा कराची में या लाहौर। में जिस टाइम पे मैचेस हो रहे हैं ना, वहाँ उस वक्त तक विंटर इतनी नहीं होगी। इट विल बी लेटर इन 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 द मार्च टाइम फ्रेम, तो वो उस वक्त तक मौसम थोड़ा बेहतर हो चुका होगा, प्रॉब्ली शायद हॉटर साइड पे जा चुका होगा। तो और फिर वहाँ से वो हवा चलने लगती है, तो इट विल बी अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। तो आप चाहे वहाँ दिन में खेलें या रात में खेलें, बॉल ही विल गेट सम परचेस। द पॉइंट इज कि कंडीशन उसकी ऐसी होंगी कि वो उसको मदद मिलेगी। द अदर थिंग इज के मुल्तान के पास द अदर पिक दैट दे हैव इज जॉर्डन। क्रिस जॉर्डन पे वो बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे, स्पेशली कि अब उनके पास एहसानुल्लाह भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनको जो है वो दो बॉलर्स तो फ़ौरन खिलाने पड़ेंगे, एंड उसकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन किस तरह का बनता है वो अब देखना होगा, क्योंकि उन्होंने बैटर्स भी काफ़ी फ़ौरन उठाए हुए हैं और बॉलर्स भी उठाए हुए हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो किस तरह से अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं। इस साल जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो टीमें अंडर परफॉर्म कर रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे होते हैं अपने कॉम्बिनेशंस में। ड्राफ्टिंग में हम देखते हैं कि भाई वो नए लड़कों की तरफ जाते हैं, बट इस साल जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि उसमें तकरीबन हर सिवाय लाहौर के, एंड आई थिंक टू एन एक्सटेंट पेशावर, लाहौर और पेशावर के अलावा बाकी चारों टीमों ने अपने जो है ना वो कॉम्बिनेशंस काफ़ी हद तक चेंज कर दिए हैं, उनके कोर काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि फॉर समबडी लाइक मुल्तान के वो किस तरह से एक नई टीम खड़ी करते हैं। नहीं, बिल्कुल जैसा आपने सही बोला, सारी टीमों के मैनेजमेंट भी चेंज हुई है। वीव सीन अली तरीन टेक ओवर मुल्तान आफ्टर हिज अंकल passed away. We've seen Andy Flower leave Multan Sultans. We've seen Abdul Rahman take over. Mushtaq Ahmed's also not there. तो ज़ाहिर है फिर नई मैनेजमेंट आती है, नया विजन होता है एक तरीके से। यू हैव अ न्यू जनरल मैनेजर ऑफ मुल्तान सुल्तान्स, तो एक स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। आई थिंक हम लोगों ने, आई थिंक वी probably would have seen जो मुल्तान ने जो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप निकाली थी when they were discussing picks, तो इट वाज अ रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव फॉर ए ड्राफ्ट। तो इसी के साथ साथ चलते हैं, हमने डिस्कस कर लिया मुल्तान सुल्तान्स की प्लेटिनम पिक एंड अ प्लेटिनम ट्रेड। अब चलते हैं डायमंड पे, जहाँ पे उन्होंने डायमंड की पिक पर उठाया है डेविड मिलान को। David Milan is also a Diamond 1 player, or Diamond level player, or Diamond level pick. Uh, I'm not too sure about his availability. I know he's a regular at England setup, so I'm not quite sure how he's going to be or how many matches he will be available for. But looking at on paper, David Milan really suits the role that Shan Masood had. Um, that Shan Masood was doing for Multan Sultans. So anyway, how do you rate this pick? लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, पूरा का पूरा उनका एक लाइक फॉर लाइक प्लेयर है फ्रॉम शाह मसूद, इफ नॉट बेटर। तो क्या कहते हैं डेविड मिलान का, क्या, हाउ डू यू रेट हिम, हाउ डू यू लाइक हिम, व्हाट्स योर थॉट्स? इट्स अ गुड पिक। उसको भी एक्सपीरियंस है खेलने का यहाँ पे, पाकिस्तान में ही हैज़ प्लेड इन PSL बिफोर। तो और आई थिंक ही कैन बी अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर शान मसूद।
एक्चुअली अ बेटर वन, क्योंकि वो उसके वो स्विच गियर्स कर लेता है, उसके पास बड़े शॉट्स हैं, हिटिंग एबिलिटी उसकी ज़्यादा अच्छी है, तो ही कैन कॉम्प्लीमेंट रिजवान अ लॉट बेटर। आई थिंक अवेलेबिलिटी देखना होगा कि अवेलेबिलिटी कैसी है, एंड देन आल्सो दे हैव रीज़ा हेंड्रिक्स, सो ऑब्वियसली नाउ दे विल फाइंड देमसेल्फ इन अ पोजीशन के जहाँ पे उनको ये देखना होगा कि भाई कि उनको एक सिमिलर रोल वाला बंदा टॉप पे चाहिए या बिल्कुल ही एक्सप्लोसिव रीज़ा हेंड्रिक्स टाइप बैटर चाहिए। मैंने थोड़ा बहुत जो है वो साउथ अफ्रीकन लीग फॉलो की थी, तो उसके अंदर मलान और रीज़ा हेंड्रिक्स दोनों की परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। दोनों ने जो है वो अपनी अपनी टीम्स के लिए ओपन की हुई है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो मिलान को नंबर 3 पे खिला दें इंस्टेड ऑफ ओपनिंग, और वो हेंड्रिक्स से जो है वो ओपन करा लें एंड रिजवान ऑब्वियसली ओपन्स। तो इट विल ऑल कम डाउन टू कि वो किस तरह का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं और वो कौन से फॉरेन प्लेयर्स पे वो ज़्यादा रिलाई करना चाहते हैं। बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड पिक। वो जो उनको एक बैटिंग स्टेबिलिटी जो चाहिए उनको, वो मलान से मिल सकती है। Yeah, I mean, Milan is known to be known to play an anchor kind of a role. Although in the recent trend, he has developed his game to play at a higher strike rate. So really excited to see what David Milan can bring to the table. He's played previously for Islamabad and Peshawar. Um, Scored, I would say, a decent amount of runs to be impressive. Or yeah, looking forward for David Milan. डायमंड को हम लोग अगर थोड़ा एक नज़र से और देख लें, दे आल्सो हैव उसाम अमीर एंड खुशदिल शाह in diamond pick. They were retained in diamond. Khushdil Shah obviously will probably be the finisher or will play as a finisher now that they don't have Pollard and Iftikhar. Sorry, now that they have Iftikhar. With Pollard gone, I feel like Khushdil Shah will have more responsibility as a finisher. Osama Mir pretty expected कि वो रिटेन होगा, 4 ओवर उसके डालना बीच में आके। ऑल्दो उसका रीसेंट फॉर्म थोड़ा अप एंड डाउन रहा है इन द वर्ल्ड कप एंड इन द न्यूजीलैंड सीरीज। हाउ डू यू सी दीज टू रिटेंशंस फॉर मुल्तान? क्या लगता है आपको कि ये पीएसएल में इन लोग की एक तरीके से डू यू सी देम रीगेनिंग देयर फॉर्म एंड रियली डिलीवर फॉर मुल्तान? खुशदिल शाह तो ही हैज़ बिन अ परफॉर्मर फॉर मुल्तान। उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, शायद बैटिंग में यू कैन से कि वो उस तरह से बहुत इम्प्रेसिव नंबर्स उसके नहीं होंगे, बट ये कि वो बॉलिंग में काफ़ी अच्छा रहता है, और रिजवान उसको बहुत स्मार्टली यूज़ भी करता है। तो आई थिंक उसामा मीर और खुशदिल दोनों उनके जो है ना वो गो टू स्पिनर्स होंगे, एंड मुझे नहीं लगता कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी कि दे विल इंक्लूड अ स्पेशलिस्ट स्पिनर इन द प्लेइंग 11, डिपेंडिंग ऑन के पिचेस किस तरह की हैं। ऑब्वियसली लाहौर से स्टार्ट हो रहा है और मुल्तान अपने सारे गेम्स जो है वो अपने होम पे खेलने वाली है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द गेम्स। तो उसमें काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि पिचेस कैसा परफॉर्म कर रही हैं वहाँ पे। बट ये कि खुशदिल ऑब्वियसली इज़ अ फिनिशर, तो और मुझे बस ये एक रिक्वेस्ट भी है, एंड आई रियली वांट टू सी हिम गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़। हमारा जो एक मसला बहुत बड़ा पाकिस्तान का भी जो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं उस रोल के, फिनिशर के रोल के, उन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें इसलिए नहीं नज़र आ रहे क्योंकि वो नेशनल में तो शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, अगर उनको डोमेस्टिक लेवल पे भी उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। खुशदिल को जब अगर आपने उसका कैरियर फॉलो किया हो, तो जब जो उसकी जो भी परफॉर्मेंसेस रही हैं, उसमें वही है कि उसको ऊपर के नंबर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा चांस मिला है, जहाँ पे उसने अपना फुल रेंज ऑफ शॉट्स और प्रॉपर उसने जो भी जिस तरह से बैटिंग वो करता है उसने की है। सैडली उसको पीएसएल में उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो वो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। इफ्तिखार भी आ गए हैं, तो ऑब्वियसली वो भी ऊपर ही खेलेंगे, तो आई डोंट नो कि वो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। तो बी मोर लाइक अ बॉलिंग ऑलराउंडर खुशदिल शाह। तो लेट्स सी
कि वो किस तरह से इस सीज़न में परफॉर्म करता है, बट आई थिंक ही शुड गेट मोर चांसेस इन दिस CPSL. अभी मैं देख रहा था खुशदिल शाह की, आई थिंक ही प्लेड BPL रिसेंटली, तो उसकी BPL की परफॉर्मेंसेस एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आई वुड से देयर डिसेंट. He's taken a wicket in every game that he's played and has gotten 15 to 20 runs. So not much you can not more you can expect from a guy who's batting at number 6, number 7. Moving on to gold. Gold में मुल्तान ने pick किया था Rezza Hendricks. Rezza Hendricks, South African opening batsman, recently did not. I think उन्होंने एक गेम खेला था वर्ल्ड कप में. I think उसने 80 कुछ रन मारे थे और फिर अगले गेम में उसको बैठाया था क्योंकि टेम्बा बहूमा हैड टू कम बैक फॉर अ गेम. तो a good choice, good batsman, decent fielder all around the ground. क्या कहते हैं आप Rezza Hendricks का first time coming into the PSL, playing for one of the most successful teams in the PSL. What role do you see him playing? Opening करते हैं traditionally. You already have David Milan. You have Usman Khan, and he sort of walks in as another opening batsman. So, क्या कहते हैं आपके? Do you see him playing in the top order? Do you see him opening with Rizwan, or do you see him playing at one down because he's also played one down for South Africa as well prior to him being picked? आई डोंट थिंक उस्मान खान इस बार है, क्योंकि वो ओवरसीज प्लेयर हो गया है, तो वो लोकल प्लेयर नहीं है. पिक नहीं हुआ तो नहीं, नहीं. वो UAE प्लेयर हो गया है वो, तो ही कैन नॉट बी, वो फॉरेन प्लेयर की कैटेगरी में आ जाता है, तो इसलिए वो नहीं है. दूसरी चीज़ ये कि रीज़ा हैंड्रिक्स का, जैसे मैंने पहले कहा कि वो ही विल बी ओपनिंग फॉर श्योर. आई डोंट थिंक कि वो नंबर 4 वार पे खेलने वाला है. वो या तो ओपन करेगा या नंबर 3 पर आएगा. इट विल बी अ टॉस बिटवीन मलान एंड हैंड्रिक्स के वो किस तरह से वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं. बट द ओनली थिंग इज़ कि क्योंकि उन्होंने मलान को पहले लिया है और हैंड्रिक्स को बाद में लिया है, तो माई सेफ गैस वुड बी कि हैंड्रिक्स जो है वो नंबर 3 पे खेलेगा, एंड ही विल बी अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ रूसो, और मलान जो है वो ओपन करेगा. बट आइडियली आई थिंक ही हैंड्रिक्स शुड ओपन विथ रिजवान, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि उसकी जो attacking aggressive cricket that will suit more in the opening slot than at one down position, क्योंकि Malan can easily play a anchor role at number 3. तो वही वाली बात है कि अब उनको देखना ये होगा कि वो क्योंकि उनको बॉलिंग में और बैटिंग दोनों में देखना पड़ेगा कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ, मीनिंग है कि किन फॉरेन प्लेयर्स के साथ वो जाना चाहते हैं. अब अगर आप उनके कॉम्बिनेशन देखें तो अगर आप रीसा हैंड्रिक्स को और मलान को दोनों को खिला रहे हैं, तो देन यू हैव टू इंक्लूड 2 बॉलर्स एज वेल, क्योंकि आपका लोकल जो है वो ऑब्वियसली दानी की अच्छी फॉर्म लगी हुई है, अब्बास आफरीदी की भी लगी हुई है, बट ऑब्वियसली वही वाली बात है कि इनएक्सपीरियंस का थोड़ा सा फैक्टर है कि आप उन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, या डू यू वांट टू ब्रिंग समबडी लाइक ली एंड जॉर्डन इनटू द मिक्स. तो ये थोड़े सी चीज़ें देखनी होंगी कि किस तरह से लेके चलना है. I rate Rezza Hendricks very highly. बहुत stylish सा batsman है. Given the opportunities that he's had, उसकी performances have always been up to mark. मुल्तान ने एक और गोल्ड पिक ली थी, Reece Topley. Reece Topley unfortunately will not be participating in the PSL due to injury. उनको ECB से NOC नहीं मिला है, तो there has been no replacement, but I believe Chris Jordan would probably step in from the supplementary category in place of Reece Topley. क्योंकि दहानी भी हैं, अब्बास आफरीदी भी हैं who can bowl the new ball alongside Willie. And then you have Chris Jordan bowling in the middle and the death overs. Reece Topley probably would have been a good addition. Only time will tell or we probably will never know how good of an addition he would be for Multan Sultans, but there's no point in discussing him because he will no longer be participating in Multan Sultans camp. तो हम लोग अब आ जाते हैं सिल्वर में.
Silver में they have retained Ihsanullah, but as we heard early Tareen really recently, उन्होंने कहा था कि Ihsanullah is not it's partially available at best if he manages to play a game or two. Uh, I think this was sort of expected, given his injuries that he's had. Shoulder injury हुई थी, not an easy injury to come back from. So, first, do you see him playing at all, if any games? And what kind of an impact do you see him having in the games that he plays for Multan? अच्छा, 2 चीज़ें पहले एक करेक्शन कर दूँ कि वो मैंने जैसे पहले कहा कि उस्मान खान नहीं है, वो आई थिंक वो है सिल्वर में। उसको सिल्वर में उन्होंने पिक किया हुआ है, तो ही विल बी अवेलेबल एज़ वेल। अब उससे जो है, और मगर वो फॉरेन कैटेगरी का प्लेयर है, तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक ही विल गेट मोर चांसेस दिस ईयर। मगर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करते हैं। दूसरी बात, जो रीस टॉपली है, वो तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे फ्रेंचाइजीज उसको लेती क्यों हैं। इस्लामाबाद हमेशा उसको उठाती रही है, या तो उसको जो है वो नेशनल ड्यूटी आ जाती थी। चलो वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि नेशनल ड्यूटी आ गई है, मगर वो बेचारा पीएसएल शुरू होने से पहले हर दफ़ा इंजर्ड ज़रूर होता है। और यही इस बार भी हुआ है। वो अभी साउथ अफ्रीका टी लीग खेल रहा था, वहाँ पे वो खेला है, एंड नाउ ही इज़ इंजर्ड। सो मुझे नहीं लगता कि अब आगे जाके कभी भी दोबारा लोग इसको उठाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट वी आर सीइंग कि वो इंजर्ड हो गया पीएसएल स्टार्ट होने से पहले। तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट अनाउंस होगी। आई डोंट थिंक मुल्तान जो है वो रिप्लेसमेंट ना ले, ऐसा होगा नहीं। जहाँ तक बात रही एहसानुल्लाह की, तो आई रियली डोंट वांट हिम टू प्ले PSL9 एट ऑल, क्योंकि वी वांट हिम रेडी फॉर द वर्ल्ड कप। और जो हालात हमारे अभी करंट बॉलिंग लाइनअप के हुए हुए हैं, उसमें तो उसमें ऑब्वियसली ही इज़ एन एक्स फैक्टर। तो उसको जो है ना, वो एक तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी की जाती है लोगों को वापस लाने में, वो प्रॉपर रिहैब नहीं करते, और उनके भी उनके कैरियर पे काफ़ी अफेक्ट होता है। तो आई रियली होप कि मुल्तान सुल्तान उसको जो है ना रश ना करे। यू नो गिव आप बहुत अच्छी बात है, आपने रिटेन किया है, कीप हिम इन द लूप, मगर उसको ज़बरदस्ती गेम देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यू हैव इनफ रिसोर्सेस अवेलेबल टू यू। एहसानुल्लाह की ऐसा ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है कि इट विल बी गुड टू हैव हिम बैक, मगर हिज करियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो मेरे हिसाब से उसको प्रॉपर जो है वो टाइम मिलना चाहिए, उसकी प्रॉपर रिहैब उसको ख़त्म करके अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह करके उसको वापस आना चाहिए, एंड ही शुड नॉट बी रश बैक। 100% I agree with you. हम लोग के हम लोग का जो मेडिकल पैनल है, they've made very questionable decisions in the recent past, with handling of injuries for Naseem Shah, Ihsanullah, Hasnan. So yeah, no, I 100% agree with you कि किस तरह इसको बिल्कुल भी I really don't want him to see I really don't want him to play PSL9 either. तो पे चलते हैं different levels of silver picks. Tayyab Tahir कराची से ट्रेड हुए हैं. Had a pretty decent 2023. I think उनका हाईलाइट हुआ था जब एशिया कप इमर्जिंग एशिया कप में जब उन्होंने 100 मारी थी. PSL में भी गुड स्कोर्स मारे थे कराची से. आई थिंक 140 एंड 150 आई थिंक मारा था. तो he's a very solid बैट्समैन. ओपन भी करते हैं, टॉप ऑर्डर में खेलते हैं. um, eh, क्या कहते हैं, डू यू सी हिम वार्मिंग अप द बेंच और डू यू सी हिम कमिंग इन? क्योंकि अब तक हम लोग के लिहाज से डेविड विली एंड रीजा हेंड्रिक्स, प्रॉब्ली क्रिस जॉर्डन, तो ये 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स हम लोग ऑलरेडी काउंट कर रहे हैं 11 में. इफ दैट इज़ द केस देन तैयब ताहिर का फिट होना दिखता नहीं है अभी, क्योंकि फिर यू हैव खुशदिल शाह एंड यू आल्सो हैव इफ्तिखार कमिंग इन. तो फिर विली भी बैटिंग कर लेता है. तो क्या कहते हैं, तैयब ताहिर का बनता है खेलना, या आप चाह रहे हैं कि तैयब ताहिर किसी डेविड मिलान या रीजा हेंड्रिक्स में किसी को रिप्लेस करे?
at least for the start of the tournament, to see if the combination works out. I don't think he will be the first choice. मेरे हिसाब से वो पहले कुछ गेम जो है ना वो बाहर बैठेगा. आई थिंक मुल्तान जो है वो रीज़ा हेनरिक्स और मलान के साथ जाएगी, एंड आई थिंक दे विल वांट टू इंक्लूड जॉनसन चार्ल्स इनटू द मिक्स एज वेल. वो अभी जो रिसेंटली आई थिंक इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स आई हैव सीन हिम प्लेइंग रियली वेल इन द मिडल ऑर्डर 4-5 नंबर पे. और क्योंकि जो आपका जो मुल्तान का भी जो नंबर 4-5-6 वाला जो स्लॉट है वो बहुत ही वॉलेटाइल है, क्योंकि लोकल फिनिशर्स हैं इफ्ती और खुशदिल, और दोनों जो है वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि आप देखें कि मुल्तान के पास मिलर, पोलार्ड, टिम डेविड, रूसो, वहाँ से उन्होंने जो है ना वो नीचे आए हैं बिल्कुल इफ्तिखार और खुशदिल पे. तो उस लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक जॉनसन चार्ल्स का ऐड बनता है, एंड आई थिंक ही इज़ इन गुड फॉर्म एज वेल. वो अब आई डोंट नो वो कौन सी लीग खेल रहा है अभी, मगर मैंने उसको देखा था कि वो किसी लीग के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है. तो अब उसमें फिर वही वाली बात है कि अगर आप उसको भी इंक्लूड करते हैं तो देन आप आपको फिर बॉलिंग का इशू आ जाएगा थोड़ा सा. बट आई थिंक उसमें जो है ना उस सिनेरियो में फिर आपके पास जो है वो तैयब ताहिर को इंक्लूड करने की गुंजाइश नहीं बचती. तैयब ताहिर को आप तभी इंक्लूड कर सकते हैं जब मलान जो है वो उसको अगर आपने नहीं खिलाना. उन्होंने नेक्स्ट पिक किया था मोहम्मद अली. मोहम्मद अली जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच में खेले थे इन रावलपिंडी, और बेचारे पहले टेस्ट के बाद ड्रॉप हो गए थे. Although a very forgettable test match for him. Not really eventful, but somehow he was able to be picked. I think he's local from Multan. Yeah, at least he's from South Punjab area. I think he's played for Northern before making his debut. Or was it Northern or was it Central Punjab? सेंट्रल पंजाब, और आई थिंक ये सियालकोट एरिया से. Sialkot area, so okay. So yeah, how do you see his inclusion? I mean, I'm really glad कि मुल्तान ने pick किया से, क्योंकि I thought कि after getting dropped from his debut match, मुझे तो लग रहा था कि ये थोड़ा मतलब गायब ही हो जाएगा सिस्टम में, दिखेगा भी नहीं कि कौन कहाँ परफॉर्म कर रहा है. तो I think this is a very golden opportunity for him. But how do you see his inclusion in the team? अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें इसकी तो वो काफ़ी अच्छी हैं. अभी वो जो एक सस्ती प्रीमियर लीग हुई है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने बॉलिंग के लिहाज से, और डोमेस्टिक में ही इज़ बिन परफॉर्मिंग वेल. पहली बात है कि आई डोंट थिंक ही इज़ गोना गेट मच गेम्स. एक दो गेम शायद डेड रबर गेम्स, या किसी को अगर रेस्ट वगैरह देना हो तो उसके लिए मिल जाएं. बट आई हाईली डाउट कि उसको मैचेस मिलेंगे. असल में मसला वही है कि इस तरह के जो बॉलर्स हैं ना वो अभी जो पीएसएल में जिस तरह की पिचेस मिलती हैं उसके अंदर आप बाउंड हैं, आपको रन्स पड़ेंगे. तो जब बॉलर्स को रन पड़ते हैं हम जो है ना उसको उस परफॉर्मेंसेस पे जज करने लगते हैं, और हम फिर उस फैक्टर को जो है ना वो नहीं देखते कि भाई कि उनको रन्स पड़े हैं तो वो क्यों पड़े. अगर आपको फ्लैट पिचेस पे रन पड़ रहे हैं एंड तो उसमें यू हैव टू फैक्टर इन के यार के आप फ्लैट ट्रैक पे बॉलिंग करा रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपको रन पड़ेंगे ही पड़ेंगे. तो अब आई होप कि उसको चांस मिले, एंड देन ही इज़ एबल टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ. मगर मुझे नहीं लगता कि उसको कोई बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. ही विल बी अ बेंच वार्मर मोस्ट लाइकली. No, 100%. I agree with you there as well. Probably like Dhani या अब्बास आफरीदी को कोई इंजरी होगी तो शायद ये बनता है इसका खेलना. But I really don't see him playing the tournament. But I'm glad कि उसको pick किया है. And I hope that serves a confidence booster for him as well. I think that concludes the silver round. We've discussed Usman Khan as well. Uh, we can probably go down to the emerging category now. Emerging category में they've they did a trade with, I believe, Karachi for Faisal Akram.
Faisal Akram he was picked by Karachi. He played one game last year, and that was probably the only game he played. And uske baad, he has been able to make his trade or make the change to Multan Sultans. A very handy left arm Chinaman. He came into limelight when he caused Babar Azam some trouble in the nets. काफ़ी उस वक्त उनकी काफ़ी वीडियोस चली थी तो एंड आई थिंक रिसेंटली उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी आई थिंक 7 विकेटें ली डिपार्टमेंट क्रिकेट में तो a good sign of form for Faisal Akram. Not a lot of left arm Chinamen in Pakistan cricket at the moment that we have seen recently. So a lot of pressure, not a lot of pressure, but a lot of expectations कि अच्छा करे. थोड़ा नया एक आर्ट देखने को मिले हम लोगों को. सो क्या कहते हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन फैसल अकरम, क्योंकि काफ़ी अरसे से ही इज़ बिन इन द सिस्टम और इन द स्पॉटलाइट. कराची से खेला है, 2-3 साल से वो एनसीए में रहा है. मतलब ही इज़ बिन देयर, ही इज़ बिन इन अंडर 19, he's there, and but he hasn't been able to um, break through on the most important circuits like PSL या any other avenue. तो क्या कहते हैं आप? नहीं, उसकी वजह वही है कि ही इज़ वेरी यंग, तो आप उस और उस पे क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. तो एज फार एज हिज बॉलिंग एबिलिटीज गोज, वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं. अभी रिसेंट इसकी जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी में जो इसकी परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत ही शानदार थी. I think he took a 10 wicket haul in one game and then 8-9 wickets in the second game, तो काफ़ी impressive start था. PSL में obviously वो देखना होगा कि वाइड बॉल से स्पिन मिलता है कि नहीं मिलता. फ्लैट डेक्स हैं, वहाँ पे आपको स्पिन नहीं मिलेगा, आपको अपनी लेंथ वेरी करनी पड़ेगी, पेस से डिसीव करना पड़ेगा. तो अब क्योंकि ये इमर्जिंग कैटेगरी में है और ये ट्रेड करके लिया है इसको, तो आई हैव अ फीलिंग कि ये प्लेइंग 11 में होगा, जस्ट बिकॉज कि ही इज़ अ लेफ्ट आर्म चाइना मैन. क्योंकि जो दूसरा इमर्जिंग प्लेयर है वो यासिर खान है और वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, तो आई डोंट थिंक ही विल गोना गेट गेम्स, क्योंकि आपके पास फिर उस्मान खान भी है. तो मुझे यही लगता है कि इस फैसल अकरम को चांसेस मिलेंगे प्लेइंग 11 में, एटलीस्ट इन द फर्स्ट फ्यू गेम्स, क्योंकि लाहौर से स्टार्ट हो रहा है. और ये लोग अपने 5 मैचेस मुल्तान में खेलने वाले हैं और उसके बाद फिर ट्रैवल करेंगे. तो उस लिहाज से आई थिंक फैसल अकरम का बनता है चांस, और वो क्योंकि लोकल बॉय भी है, आई थिंक ही इज़ फ्रॉम मुल्तान, तो वो फैक्टर भी होता है. तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, और अगर वो यहाँ पे परफॉर्म कर जाता है तो देयर इज़ अ चांस कि ये आगे कंसिडर हो जाए फॉर द नेशनल सेटअप. आई मीन हम लोग को आदत भी है यंग प्लेयर्स को खिलाने, एक डेब्यू कराने का, एक आफ्टर वन सीजन ऑफ PSL. You mentioned Yasir Khan, who's another emerging pick. um, I'm surprised कि वो भी emerging pick क्यों है, क्योंकि वो पेशावर से भी खेल चुका है, वो क्वेटा से भी खेल चुका है. I thought कि रूल था कि after 2 seasons you're not considered a emerging player, या उसमें कोई मैच की लिमिट है. या तो 2 साल या फिर 10 मैचेस. तो he has played 2 seasons. हाँ, मगर 10 मैचेस थोड़ी खेले उसने. Yeah, उसने probably not. Yeah. पेशावर के लिए भी जो उसने मैचेस खेले थे वो आई डोंट थिंक कि उसने कोई बहुत ज़्यादा मैचेस खेले थे. और जो क्वेटा के लिए पिछले साल वो गया था, तो उसमें तो वो सिर्फ 1-2 गेम ही में ही खेला था, तो दैट्स व्हाई ही इज इन इमर्जिंग. Okay. I mean, despite that, he's a very solid batsman. ओपन करता है, हिटें ठीक ठाक लग जाती हैं इसकी. वही, बट एट द एंड ऑफ द डे वही बात है, कंसिस्टेंसी का एलिमेंट थोड़ा मिसिंग है. बट होपफुली if he does get the chance, um, unless top order का batsman है, very very hard to see him play in the playing 11. Probably would probably miss out and act as a replacement player for the Multan Sultan squad. Supplementary में Multan Sultan ने आफ्ताब इब्राहिम को उठाया, क्रिस जॉर्डन को उठाया है.
अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हुई थी। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में इन लोगों ने आपके जॉनसन चार्ल्स को उठाया है और मोहम्मद शहजाद को उठाया है। तो क्रिस जॉर्डन, आई बिलीव ही वुड कम इन फॉर रीस टॉपली। बात जहाँ तक रही जॉनसन चार्ल्स, मोहम्मद शहजाद एंड Aftab Ibrahim. I have not seen a lot of Aftab Ibrahim. I don't know what kind of player he is. तो भैया आप बताएं, would you please shed some light on who Aftab Ibrahim is? उसका, what does he do? What's the purpose of his inclusion in this Multan Sultan squad? आफ्ताब इब्राहिम ने इस साल जो है वो सिंध से खेला है रीजनल क्रिकेट। ये जब भी सिंध की जो टीम T20 चैम्पियन बनी है उसके अंदर भी खेल रहा था। एंड आई थिंक ही हैज़ प्लेड ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। उसने रेड बॉल भी खेली है और उसने वाइट बॉल भी खेली है, वनडे और T20 दोनों। तो ही इज़ अ बॉलर बट आई थिंक ही कैन बैट एज वेल। तो उसको ऑलराउंडर कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। मैंने उसकी बॉलिंग देखी है, मैंने उसकी बैटिंग इतनी आई डोंट थिंक उसको इतने चांसेस मिले बैटिंग में। बॉलिंग में ही इज़ अ मीडियम पेसर, तो ही इज़ ओके। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा चांस वांस मिलने वाला है। ही विल बी अ बेंच वार्मर फॉर श्योर। बट बट क्योंकि उसने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया हुआ था इस सीज़न में, तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे वेंट फॉर हिम। और फिर प्लस बात वही है क्योंकि एहसानुल्लाह इंजर्ड है, दानी की भी इंजरी के इश्यूज रहते हैं। आई थिंक दे हैड एन आइडिया कि रीस टॉपली भी जो है ना वो उसकी भी इंजरी के इश्यूज हो सकते हैं, तो दैट्स व्हाई दे केप्ट बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल फॉर देम इन द PSL। तो वो इस वजह से उन्होंने काफ़ी पिक्स की हैं बॉलर्स की, बट मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा कोई चांस मिलने वाला है। Okay. I mean, that's always at least good to hear that local players are, being rewarded for their performances in domestic. Um, that being said, I believe that covers the entire draft for Multan Sultans. It is a very new squad for Multan. Uh, Not the kind of core that we've been seeing in the previous 3 years. So I think it's fair to say that ये थोड़ा challenging season होगा. Uh, Rizwan is probably the only consistent batsman, I would say. तो काफ़ी pressure होगा रिजवान पे, and a lot of pressure on the overseas pros coming in. But before we end this, who do you think is the X factor for Multan? कौन ऐसा प्लेयर है जो आप कहेंगे कि यार मुल्तान अगर फाइनल में आता है ना भाई, तो ये इसका चलना ज़रूरी है? आई थिंक एक्स फैक्टर फॉरेन प्लेयर्स में मैं अगर देखूं तो रीज़ा हेनरिक्स पे आई थिंक दे विल बी डिपेंडिंग ऑन कि वो, क्योंकि टॉप ऑर्डर में जिस तरह का प्लेयर है, अगर वो चलता है, क्योंकि उन्होंने रायली रूसो की शक्ल में एक बहुत ही सॉलिड बैटर लूज किया है। इवन दो कि उन्होंने इफ्तिखार को लिया है, मगर ऑब्वियसली इफ्तिखार कैन नेवर रिप्लेस रूसो। तो उस सिचुएशन में रीज़ा हेनरिक्स एक ऐसा प्लेयर मुझे लगता है कि जो कि फॉर्म में भी है, और वो क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, वो बहुत ही एग्रेसिव उसका स्टाइल ऑफ प्ले है। तो वो मुल्तान की ज़रूरत भी है। एंड आई थिंक अगर वो चल जाता है मुल्तान के लिए तो वो काफ़ी हेल्प करेगा, रिजवान को भी हेल्प करेगा और फिर उनके टीम कॉम्बिनेशन को भी हेल्प करेगा। बॉलिंग में आई थिंक दे विल बी डिपेंडिंग अ लॉट ऑन धानी। धानी हैज़ टू स्टेप अप नाउ। वो उसको PSL 6 से कैरी कर रहे हैं। PSL 6 में आई थिंक वो शायद बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गया था शायद। तो नाउ इट इज़ टाइम फॉर हिम टू स्टेप अप एंड रियली लीड द पेस अटैक।
पिछले साल भी उसको इंजरी हो गई थी तो ही वॉजंट एबल टू प्ले द होल सीजन, और फिर वहाँ पे अब्बास आफरीदी एंड एहसानुल्लाह स्टेप्ड अप। मगर दिस ईयर ही शुड बी टेकिंग द लीड, क्योंकि वो परफॉर्म भी कर रहा है। उसने अभी डोमेस्टिक में अच्छी बॉलिंग कराई है, तो उसके होने से आई थिंक ये दो प्लेयर ऐसे हैं कि इनकी वजह से जो है ना टीम उठ सकती है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। क्योंकि नए कॉम्बिनेशंस इनको बनाने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक उनका एक कोई सेट कॉम्बिनेशन के साथ ये जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट भी नहीं है, यू नो पूरा वो उनका कोचिंग स्टाफ डिफरेंट है। तो कैप्टन तो नया नहीं है, मगर प्लेयर्स काफ़ी नए हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको सेटल इन होने में। एंड उसमें यह है जो उनके जो रिटेन्ड प्लेयर्स हैं, खुशदिल है, दानी है। दानी खैर रिटेन तो नहीं था, उसको बाद में पिक किया, मगर ही हैज़ बिन विद द फ्रेंचाइज फॉर कपल ऑफ इयर्स नाउ। तो उस सिचुएशन में दे हैव टू स्टेप अप फॉर द टीम। No, I 100% agree. I think दानी को PSL 7 में ठीक ठाक क्रिटिसिज्म भी हुआ था क्योंकि आई थिंक ही वाज गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। 6 में उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, बट इन 7 he struggled a lot. Um, yeah. Do you think कि नई कोचिंग स्टाफ से टीम में कोई असर पड़ेगा? Like, and the reason why I'm asking is क्योंकि हैदर अजहर नहीं है, एंडी फ्लावर नहीं है, मुश्ताक अहमद नहीं है, अली तरीन का थोड़ा डिफरेंट सा व्यू है on how he wants to take this franchise forward versus his uncle. तो आपको लगता है उसमें कोई प्लेयर विजन या प्लेयर हैंडलिंग या लेट्स से रिजवान राइट एज अ कैप्टन, डू यू सी कि उसकी कैप्टनसी में कोई चेंज होगा? डू यू सी the dynamics changing at all, like from the team's perspective, the playing 11 that enters the team? Do you see anything changing on that end from the new, I guess, power dynamics and within Multan? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उन्होंने अब्दुल रहमान को हेड कोच इसीलिए बनाया है, क्योंकि ही नोज द प्लेयर्स वेरी वेल। और वो क्योंकि एंडी फ्लावर के अंडर का आई थिंक 2 साल से काम कर रहे थे, तो ही मस्ट हैव पिक्ड अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसकी वजह से जो उनकी प्रमोशन हुई है बीइंग अ हेड हेड कोच, और अब उनको पाकिस्तान टीम का भी एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हम शायद चेंज देखेंगे इन टर्म्स ऑफ जो कॉम्बिनेशंस वो बनाएंगे। और ऑलरेडी हमने इस ड्राफ्ट में जिस तरह से उन्होंने रिटेंशंस की और जिस तरह से उन्होंने ड्राफ्ट किया, ये हमें देखने को मिल गया एक्चुअली, कि वो किस लाइन पे चलना चाह रहे हैं। तो अब वो कामयाब होती हैं कि नहीं होती हैं ये देखना होगा, बट उसमें लोकल प्लेयर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट मुझे ये लोग नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेन प्लेयर्स। तो उस पे विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपको अगर आपकी टीम ने अगर अच्छा करना है या आपकी टीम ने आगे तक जाना है या सस्टेनेबल रहना है, तो उसके लिए आपको लोकल प्लेयर्स चाहिए। लाहौर ने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म किया है इन द लास्ट 2 सीजन इज़ बिकॉज कि उनके पास लोकल प्लेयर्स काफ़ी अच्छे, उनका एक कोर बहुत अच्छा लोकल प्लेयर्स का बन गया था। तो I think Multan will need to do that, in this year and in future years as well. तो ऑब्वियसली चेंज तो बिल्कुल होगा। एंडी फ्लावर वगैरह की जो मैनेजमेंट थी या जो उनके टैक्टिक्स थे वो डिफरेंट थे, ये थोड़े से डिफरेंट होंगे। बट आई डोंट थिंक कि इनका जो एक वो जिसे कहते हैं ना, ये जो मोजो होगा खेलने का, वो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। Okay, yeah, I agree with you. I think at the very best maybe उनका स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा बहुत चेंज हो सके एट द वेरी बेस्ट, मतलब थोड़ा एग्रेसिव खेल लें, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क के लिए से खेलें। तो विद दैट बीइंग सेड, वी टू आवर ऑडियंस वी रियली होप कि आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो। We've covered all. We've covered actually 5 teams up until now. Our next analysis would be on Quetta Gladiators. तो अगर आपको हमारा analysis अच्छा लगा, please
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फीडबैक दें कि आप लोगों को कैसा लगा. If there's anything that we missed, please point it out so we can, if we can probably try to cover it into our next episode as well. तो अब तक के लिए इतना ही. आप लोग हम लोग को इजाज़त दें. कल ही क्रिकेट शो पे आप सबको होस्ट करने में अच्छा लगा. इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी on our next episode when we would be discussing Greater Gladiator Squad Analysis. Allah Hafiz.